जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी हाउ मुंबई वेक्स अप टू तामिलियन इडलीज। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है क्योंकि यहाँ पे बात मुंबई की हो रही है, तो अगर वड़ा पाव लगाते तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ इंडियन कुजीन की, इडली की बात की जा रही है। अब कहानी क्या है इसके पीछे, वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। चलते हैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कस। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड चलो। ऊपर से आप दारे में पत्थर फेंकेगा ना, इडली के वाला साथ दुकान बेच रहेगा। दारा भी ऐसा कंडीशन है। At 3 a.m., the financial capital of India is fast asleep. But in Dharavi, the daily idli quota is already in motion. ये कंपनी टोप में इडली वड़ा बेचने के लिए चालू किया था। 4 साल में 12 दुकान हम लोग खोला। Decades ago, Tamil migrants arrived in Dharavi to work in the textile mills. Today, they command a corporate food network that feeds the city. हम लोग को केटरिंग लाइन में एक दिन में कम से कम 15 से 18,000 रुपये का खाना बनेगा। What started as a daily hustle on the streets didn't stay there. They turned a simple idli stand into a massive food network. अपडेट तो होना चाहिए, अपडेट के विदाउट नहीं होता है। हम लोग को पहले धोती पहनता था, मुंबई वाला हमको पैंट पहनने के लिए सीख लिया। Today, we step inside the Tamil food economy of Dharavi. Before it became a thriving settlement, Dharavi was just a mangrove swamp where local fishermen lived. As the city of Bombay expanded, the British began filling the swamps with earth to make new land. This area quickly became a home for the working class. People poured in from all over India. Potters from Gujarat and factory workers from UP. When the Tamil community arrived to escape severe droughts, they didn't start out selling food. They survived by taking the city's hardest jobs in dusty cotton mills and toxic leather tanneries. कैसा था, मेरे भाई ने 85 में मिल में काम किया था। जो कपड़ा का मिल होता ना, वो मिल में काम किया था। फिर 1 साल काम किया, फिर उसको नहीं पड़ता है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा उसमें। उसका हाथ का प्रॉब्लम बहुत होता है, वो लाइन ऐसा है। With low pay and dangerous conditions, the mills offered no real future. When some mills began closing down, the community had to find a completely new way to survive. शुरू हुआ खाली एक धंधा करने के हिसाब से पहले शुरू किया था। टोप में इडली वड़ा बेचने के लिए चालू किया था। वो टाइम मुंबई में इतना डेवलप भी नहीं था। A rapidly growing Mumbai needed affordable, filling food. So it was very easy to serve, very easy to cook, very easy to adopt, very easy to purchase. For the Tamil community, the idli was the answer they were looking for, turning their heritage into a business by selling breakfast to their former co-workers at the mills. पहले 30 साल का पहले साल का टर्नओवर 8,000 रुपए का टर्नओवर था। ऐसा शुरू हुआ, आज अच्छा है। Today, they are doing great. For the Tamil community, the idli was a tool for survival. But the simple rice cake that built their success has an interesting history behind it. While several South Indian states claim to be the birthplace of the idli, historians say otherwise. The dish actually traces back to Indonesia, where it was known as kedli. Idli originated from Indonesia, especially when our Hindu kings, when they are visiting Indonesia, some people are using banana leaves, the steamed food items. Centuries later, Tamil migrants carried that same recipe into the chaotic industrial streets of Mumbai. In a fast-paced city, the modern idli was a culinary miracle. It was completely oil-free, perfectly steamed, and easily affordable for the masses. But Malayandi and his brothers didn't just use it to survive, they used it to build a food empire. फिर वो टाइम का बात क्या, ये धंधा थोड़ा अलग अच्छा क्वालिटी में करने का, जो लोकल करता ऐसा नहीं, अच्छा पब्लिक अच्छा देने का करके इस सब से धंधे को डेवलप करके हम लोग क्या किया, केटरिंग में सप्लाई करने के लिए चालू किया था। They mechanized the entire operation, turning a street-level kitchen into an automated factory.
अभी देखो, वाह। 15 साल के पहले मैं भी मैन पावर का पावर बहुत करता था। वो टाइम इडली का आटा पूरा हाथ से करना पड़ेगा, चावल धोने के लिए भी हाथ से करना पड़ेगा। फिर हम क्या किया, उसकी एक एक टेक्नोलॉजी में वो सब डेवलप कर लिया। Idli was just the starting point. 15 साल Over पहले time, सब they कुछ expanded हाथ their से operation, introducing a variety of other South Indian dishes to meet the city's growing demand. अपना इडली में कम से कम 150 वैरायटी है, और डोसा में भी ऐसी 150 वैरायटी है, और वड़ा में अपना पास 40-50 वैरायटी, और राइस आइटम भी 10 वैरायटी के ऊपर है। वाह। Rajesh manages the entire kitchen operation. Because of the sheer volume they produce, the preparation for tomorrow's food has to begin a day in advance. अभी अपनों को कल सुबह का ब्रेकफास्ट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रात को 8 बजे तक सांभर का कटिंग और दाल सब पकाते हैं, एक 12 बजे तक फिनिश कर देते हैं, और किचन पूरा क्लोज हो जाता है। The morning shift hits the floor at 3 a.m. While the rest of the city sleeps, the morning crew starts churning Cutting out तो massive मैंने रात में batches कर of ली है, fresh सारी, chutney हाँ। and bringing industrial vats of sambar up to a rolling boil. उसके बाद अपना 5 बजे, सुबह 5 बजे इधर से माल निकलता है बाहर ब्रेकफास्ट के लिए। बाहर इधर से आटा, अभी इडली वड़ा और सांभर चटनी इधर से जाएगा। अपना लेबर उधर जाके कितना 7 बजे उसको बना के देने का। Malayandi and brothers provide food to a network of retail outlets and operate a massive private catering division. पहले हम लोग केटरिंग की सप्लाई करता है, फिर उसके बाद हम कोरोना आया। कोरोना में हम लोग को कैसा था, केटरिंग लाइन जो एकदम ऑफ हो गया। फिर हम लोग को सोचा था रिटेल में करने का। Starting retail outlets was not easy. It required 365 days of hard work and solid teamwork. हम 4 जन है ना, एक जन मैनेजमेंट पूरा देखता है, एक जन क्वालिटी देखता है, एक जन टेक्नोलॉजी देखता है, एक जन धंधा देखता है। मैं भी पूरा जिस मेरे को भी नहीं आता है, और पूरा जिन सामने वाला का भी नहीं है। Tight coordination and a dedicated crew make this massive scale possible. मुश्किल काम करके कुछ नहीं है, सब लोग कोऑर्डिनेशन करके काम करेगा, सब काम अपना ऐसे ही होता है। दिल से काम करेगा, खुशी से काम करेगा, काम हो जाता है बस। Dharavi has an estimated 1,000 family-run idli micro businesses. Together, these informal factories and street vendors produce and supply roughly 3 lakh idlis a day. हमारा काउंटिंग धारावी के अंदर वाला कितना करके नहीं पकड़ता है। ऊपर से अब धारावी में पत्थर बेचेगा ना, इडली के वाला का दुकान में करेगा। धारावी ऐसा कंडीशन। Despite fierce competition across Mumbai, the idli business is thriving. And for the Malayandi and brothers, their ultimate weapon to beat the market is authenticity. मैं कुल्ला बोलेगा कि मुंबई में जो बेचता है सब क्वालिटी इडली डोसा नहीं है। बेसन में इडली डोसा बनाता है, कुछ भी आटा में इडली बनाता है। हम ऐसा नहीं, इडली बोले तो चावल प्योर। And that dedication paid off quickly. 4 साल में 12 दुकान हम लोग खोला। To the outside world, Dharavi is often misunderstood. But it's an ecosystem where marginalized communities built their own microeconomies from the ground up. Today, the Tamil migrants aren't just holding their ground, they're driving the local economy, running vast kitchens that provide steady jobs for hundreds of others. पहले हम लोग 6 जन रखा था, 30 साल का पहले। अब मिनिमम 40 आदमी रहेगा। फिर साइड का अलग रहता है। Even with a massive factory floor running behind them, the brothers still push it forward every single day. कभी भी मेहनत थोड़ा तकलीफ रहेगा। पहले जो भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पहले गाड़ी ढोकेगा, फिर आप गाड़ी मस्त चलाएगा। मेहनत तो 100% इंडिया में फुल करना पड़ेगा, तो मेहनत के विदाउट कुछ होने वाला नहीं। In the end, a plate of idli here is a tool for sheer survival. It represents a community that arrived with nothing, stood their ground, and outworked the odds. अच्छा, अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मतलब हम लोग जिस तरह से वड़ा पाव को समझते हैं कि भाई मुंबई में सिर्फ वड़ा पाव फेमस है, वैसे ही हमें आज की वीडियो से पता चला कि भाई इडली भी इक्वली वहाँ पे फेमस है। और कैसे आई, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई जब मुंबई डेवलप हो रहा था और यहाँ पे फैक्ट्रीज और मिल्स बन रही थी, खास तौर पे टेक्सटाइल मिल की यहाँ पे उन्होंने बात की, तो पूरे देश से लोग यहाँ पे आते थे काम के लिए। और फिर उन्होंने देखा कि भाई उसमें उतना प्रॉफिट नहीं था, मेहनत ज्यादा थी, या बहुत सी मिल्स उन्होंने बताया कि बंद भी हो जाती थी ना,
ना, तो उस टाइम पे ये आइडिया आया कि भाई लोगों को खाने की भी ज़रूरत है और ऐसे कोई इंतजाम तो है नहीं यहाँ पे, तो व्हाई नॉट हम यहाँ पे अपना साउथ इंडियन कुजीन को इंट्रोड्यूस Introduce करवा और दें। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ओरिजिनल रेसिपीज को वहाँ पे introduce करवाया, हाँ जी। क्योंकि बाकी लोग जो वहाँ पे काम करते थे उन्होंने बताया कि वो अपने हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे थे, Cost कॉस्ट effective इफेक्टिव कर रहे थे, और ज़ाहिर क्योंकि ऑथेंटिक नहीं था ना, हाँ जी। उन्होंने वो भी तो बताया कि फ्लेवर वो भाई सेम नहीं आता था हाँ वो कि वाला। अभी भी धारावी में 1000 फैमिलीज ऐसी हैं कि जो इडली का काम कर रही करती हैं, हैं। लेकिन कोई बेसन में बना रहा है, कोई आटे में बना रहा है, लेकिन ऑथेंटिक फ्लेवर जो वो है वो राइस का राइस ही का है, होता बिल्कुल। है। अच्छा, और फिर वो भी चीज़ बड़ी अच्छी थी, मतलब कोई भी काम करना है तो बात सही कर रहे हैं कि भाई 100% आपको उसको देना देना पड़ेगा। पड़ता है। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम वर्क बहुत ज्यादा मतलब जरूरी उन्होंने है। वही कहा ना कि उनके बिजनेस का जब स्टार्ट था तो हर चीज वो अपने हाथों से खुद करते थे थे, और उसके लिए- चावलों को पीसना ज़ारा इतना आसान नहीं है, वो आपको भी हाँ, पता है। बिल्कुल। और खास तौर पे इडली बनाने के लिए ना आपको Finest paste चाहिए हाँ आपको। बिल्कुल पेस्ट की तरह बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। है। और आप देखिए उन्होंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता करके एक टाइम था कि जब 8000 रुपया उनके पूरे साल का प्रॉफिट profit होता होता था, था। और करते करते वो चीज़ इतनी अपग्रेड हुई कि उन्होंने सारी मशीनें ऑटोमेटिक अपनी खरीद ली और हर खरीद चीज़ ली, उनका हाँ, काम जो है हाँ। आसान हो गया। अच्छा, उसके और साथ। अब देखो इस टाइम पे जब वो फ्लरिश कर गए हैं, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने क्या बताया कि भी किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है। हाँ कि भी 40 लोग ऐसे हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, और उनके टाइमिंग्स क्या क्या हैं, कटिंग कब Different होती shifts है, के अंदर काम कब हार्डली बनाया उनका जाता किचन है। बंद हो रहा है हाँ। मतलब रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक सिर्फ 3 घंटे बंद हो रहा है, बाकी 24 आवर्स आप कह लें ऑलमोस्ट और 21 आवर्स चल रहा है। ज़ारा उसके अंदर ये देखो ना कि शिफ्ट्स होंगी लोगों हाँ जी। की जो वो काम कर रही है, लेकिन आप देखो कि क्वालिटी फूड वो दे रहे हैं और प्राइस वाइज बहुत अच्छा है। उसके बाद ऑयल फ्री खाना मिल रहा है, और वैरायटी कितनी है। देखिए जब वो पैक करे तो हर चीज पे टैग लग रहा है कि ये क्या चीज है और हाँ, ये कितनी देर तक बिल्कुल। फ्रेश रहेगी, उसकी उसकी एक्सपायरी एक्सपायरी के साथ जा बन रहा है ना, तो जी, वो जी। हाइजीन को भी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे। और अच्छी बात ये लगी ना कि भाई इतनी वैरायटी का फूड वो दे रहे हैं, मतलब 150 वैरायटी की खाली इडली सर्व इडली है, कर रहे ऐसा हैं। ही। और इडली की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग मतलब इडली जो है वो ओरिजिनेटेड है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया और से, वहाँ हाँ। पे इसको किडली कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, इसी ऐसा ही तरह है। लेकिन आप देखो बहरहाल ये हेल्दी फूड है। हाँ जी। आप इवन बाकी कोई भी चीज खाओगे, जो वड़ा होता है फ्राइड, उसमें भी ऑयल यूज हो रहा है, लेकिन इडली स्टीम्ड है, Steamed है, उसके अंदर बिल्कुल। कोई किसी किस्म की ऑयल्स नहीं, और फ्लेवर उसको चटनियां दे देती हैं। चटनियाँ दे देती है, सांबर है, चटनीज बन रही है वहाँ पे, सो ये सारे फ्लेवर ऐड हो जाते हैं। तो बहरहाल हमें आज ये चीज़ पता चल गई कि भाई इडली इक्वली फेमस है मुंबई में, और किस तरह से ये पूरी चेन रन करती है, वो सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे सीखी। बाकी आप बताएं वीडियो कैसी लगी, हमारी रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए।